Hello everyone, this is Prerna and welcome to Learn with Prerna. Today I am going to explain you all a chapter of the book Ace with Aster. The name of the chapter is The Eyes Have It. Actually, it is a very interesting story written by Ruskin Bond, who is a very famous author. This story is about a boy who is traveling all to Missouri. So let's start. In the starting of the story, the boy is saying that he was sitting by himself in the train compartment which is going to Rohana. Rohana is a place, not a name in this sentence. But later, a girl got into the compartment as well. There was a couple with the girl, so he is thinking that the couple is her parents. They were very anxious about her, means they were little worried about their daughter. And the woman means the mother of the girl was giving her detailed instruction about where to keep her things, not to lean out of the window, and avoid speaking to strangers. Later, they said goodbye to their daughter and get out of the train. And the train start to move again. Now the author is saying that he was completely blind. Who? The boy. The boy was completely blind and he was very sensitive to light and dark only. Means he was not able to see anything and he could only feel light and darkness. हम भी जब हमारी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ ऐसा लगता है कि हल्की सी रोशनी है या फिर पूरा अंधेरा है. Now he is thinking that he was unable to say how the girl looked like, but he knew that she was wearing slippers. Why? Because of the sound produced by her slippers and heels. हम लोग भी जब स्लीपर्स पहनते हैं तो चलते टाइम एक स्नैप की आवाज़ आती है ना, जो हम स्लीपर्स और हमारी हील जब साथ में टकराती है तब, तो उसी टाइप की आवाज़ आ रही थी. तो और जो बॉय था उसे समझ में आ जाता है कि जो लड़की है उसने स्लीपर्स पहन रखे थे. Now he is thinking that it will take him some time to discover how the girls look like, or maybe he will not able to say how she looked like as he was blind. But he is saying that he liked the sound of the girl and he also liked the sound of her slippers. Till now, the boy was talking to himself only. But now he asked the girl, "Are you going to Dehra?" The girl startled by the voice. She was shocked as she thought that there was no one. Now she stopped for some time. She gave explanation and then she said, "I didn't know anyone else here was." Now the boy is saying, people who have good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose. तो अब लड़का है वो कह रहा है कि जो लोग देख पाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही चीज़ें देखनी होती है ना, जैसे हम सब कुछ देख सकते हैं तो बहुत कुछ देखना रह जाता है. जैसे कभी हमें मम्मी बोल देती है कि टेबल पे से चाकू लेकर आ जाओ, तो चाकू हमारे सामने ही रखा है लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि हम बाकी चीज़ें देखने में भी खो जाते हैं. तो उसे लग रहा है कि जो लोगों को दिखता है उन्हें बहुत कुछ ऐसे देखना भी पड़ता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें देखनी रह जाती हैं. Whereas people who cannot see have to take in only the essentials, whatever registers telling on their remaining senses. लेकिन जो लोग अंधे होते हैं या जो लोग नहीं देख पाते हैं उन्हें सिर्फ वही चीज़ लेनी पड़ती है जो कि उन्हें ज़रूरत है. जैसे अभी चल के जाना है, हमें ये उठाना है, इस चीज़ का काम है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें लेनी होती है. और ये सब वो कैसे डिसाइड करते कि कहाँ पर है, ये सब जो भी उनके ब्रेन में जो स्टोर्ड होता है. रजिस्टर्स यहाँ पे मतलब है स्टोर यानी सेव होता है, और जो रिमेनिंग सेंसेस उनके बताते हैं जैसे हियरिंग हो गया, स्मेलिंग हो गया, ये जो सेंसेस बताते हैं उन्हीं के बेसिस पे जो भी उनको ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों का वो करते हैं, यूज़ करते हैं. अब लड़का कहता है, "I didn't see you either," I said, "but I heard you come in." The boy is now trying to say he didn't see the girl either, but he heard him come inside. Now he is wondering, will he be able to prevent the girl from discovering that he was blind or not?
So now he decided to sit on his seat only and think it shouldn't be too difficult to stay in his seat for some time only. The girl said that she was getting off at Saharanpur as her aunt was meeting her there. Now the boy is saying that he shouldn't get too familiar. मतलब ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए लड़कियों उस लड़की के साथ, क्योंकि जो आंटी होती है ना थोड़ी ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल होती है, मतलब उन्हें इम्प्रेस करना है, उनके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. Now the girl asked, "Where are you going?" So the boy replied, "To Dehra and then to Mussoorie." Means he was getting off at Dehra and later taking another train to Mussoorie. Now the girl is saying that how lucky is the boy, as she also wanted to travel to Mussoorie. She loves the hill, she's saying to the boy, especially in October. So now the boy replied, "Yes, October is the best time." He said, calling on his memory whatever he's able to remember from his last time's trip. He's saying the hills are covered with wild dahlia. Dahlia is a wild plant which grow on the hills in October in Mussoorie. The sun is delicious. Delicious here means pleasant. It doesn't mean tasty. Now, he is saying that at night you can sit in front of a log fire and drink coffee. हम भी सर्दियों में ऐसे लकड़ी जलाकर सामने बैठ के ऐसे कॉफ़ी या फिर हॉट चॉकलेट पीते हैं, तो जिससे इससे मज़ा आता है, वैसे वहाँ पे हम कर सकते हैं, ये बता रहा है. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. As he was blind, he was not comfortable around so many people. So he is saying that in October, Mussoorie is not that much crowded. It is deserted. Means very few people are there. So he could enjoy the environment there all by himself. He was not getting crowded. So he doesn't have to be confused because of the noises. मतलब अगर कोई अंधा है और ज़्यादा आजू बाजू लोग हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो उससे अपने सेंसेस ढंग से काम नहीं कर पाते ना, इतनी सारी आवाज़ में इंसान कंफ्यूज हो जाता है. लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, तो कोई नहीं होता है, बहुत कम लोग होते हैं, तो उसके सेंसेस मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा अच्छे से वो एनवायरनमेंट को फील कर पाता है. तो वो कहता है येस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम. द गर्ल वॉज साइलेंट, सो ही वॉज थिंकिंग दैट if his word touched the girl, or she was thinking that he was a romantic fool. But later he made a mistake. Who? The boy later made a mistake. He asked the girl, "What is it like outside?" She seemed to find nothing strange in the sentence. Means the girl didn't find any strangeness in the question. Now the boy is getting worried. He is thinking, had she already noticed that he is blind? But her next question cleared his doubt. "Why don't you look out of the window?" she asked the boy. यानी लड़के को जब इसने पूछा था कि बाहर कैसा लग रहा है, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, तो लड़के को अचानक से लगा कि मैंने गलती कर दी, अब ये तो ना हो जाए कि उसे पता चल जाए कि मैं अंधा हूँ. लेकिन उसने जो सवाल पूछा उससे लगा हाश मैं तो बच गया. उसने पूछा व्हाई डोंट यू लुक आउटसाइड, तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते. And moved easily along the berth and felt for the window ledge. मतलब फिर हम वो थोड़ा सा ऐसे खिसकते जो ट्रेन की सीट थी उससे खिसकते विंडो की तरफ गया और विंडो की जो लेज होता है मतलब वो रॉड टाइप होता है ना, उसे फील किया. विंडो खुली हुई थी और उसने उसे फेस किया. एंड देन ही स्टार्टेड टू प्रिटेंड द स्टडिंग ऑफ लैंडस्केप. फिर उसने ये दिखावा किया कि वो फील कर रहा है कि क्या है, वो देख रहा है कि बाहर कैसा दिख रहा है. He heard the panting of the engine. Then he heard the rumble of the wheels. हर एक स्टेशन पे पोस्ट ऑफिस होता ही है, तो वो अपने दिमाग की आंखों में, माइंड्स आई मतलब दिमाग की आंखों में
ये इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पे टेलीग्राफ पोस्ट ऐसे जा रहा है फ्लैशिंग बाय. Then he ventured, have you noticed that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? Ventured का मतलब है कोई सवाल करना या फिर कोई भी ऐसी बात करना जिसमें ये श्योर नहीं है कि सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा या नहीं. तो वो कहते हैं कि तुमने नोटिस किया कि ऐसा लग रहा है जैसे बाहर के जो पेड़ है वो ऐसे लाइन से मूव कर रहे हैं और हम लोग ऐसे खड़े हैं सीधा स्टैंडिंग स्टिल. नाउ द गर्ल सेज दैट ऑलवेज हैपन, ये तो हमेशा होता रहता है. डू यू सी एनी एनिमल्स? आई सेड, आई मीन्स द बॉय सेड नो. He said that very confidently because he knew that very few animals were left in the forest near Dehra. Then he turned from the window and faced the girl. मतलब फिर बाद में वो विंडो को देखना उसने छोड़ दिया और लड़के के सामने देखते हुए बैठ गया. And for a while they were sitting in silence. Then he remarked, then he commented that you have an interesting face. He think that he was becoming a quite brave, quite daring, but thankfully it was a safe comment. क्योंकि ऐसे अगर आप अचानक से किसी भी अजनबी की तारीफ करें तो सामने वाले को गलत भी लग सकता है ना, तो सामने वाला भड़क ना जाए. लेकिन शुक्र है भगवान का कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लड़की भड़की नहीं और उसने मतलब चिल्लाया नहीं. Instead, she laughed pleasantly, a clear ringing laugh. And then the girl said, it's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. अब लड़की बोलती है कि ये अच्छा लग रहा है कि किसी आप नए हो जिसने मुझे ये बताया कि मेरा एक इंटरेस्टिंग फेस है, वरना लोग तो हमेशा ये कहते हैं कि मेरा एक प्रिटी फेस है. ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, आई थॉट. तो जो लड़का है वो सोचता है अच्छा तो आप सच में आपके पास एक सुंदर चेहरा है. एंड देन अलाउड आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी. फिर वो जोर से उस लड़की से कहता है कि हाँ, एक इंटरेस्टिंग चेहरा है, प्रिटी भी हो सकता है. देन द गर्ल सेड, you are a gallant young man, means you are a brave and daring young man, but why are you so serious? Then the boy thought that he will try to laugh for her, but the thought of laughter made him feel troubled and lonely. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अंधा था. अगर वो हंसने की कोशिश करता तो उसे लोनली सा फील होने लगा. अचानक से उसे लगा कि मैं उसे देख तो नहीं पाऊंगा, मैं तो फील तो नहीं कर पाऊंगा जब वो हंस रही होगी तब. तो ये सब सोच के उसे लोनली लगने लगा. ऐसा लगने लगा कि वो अपने आप में समेटा हुआ है, वो बाहरी दुनिया को देख नहीं सकता, ना ही किसी और को फील कर सकता है, तो उसे लोनली लगने लगा. सो द बॉय सेड नेक्स्ट, वेल soon we will be at your station. Now the girl said, thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. तो अब लड़की कहती है कि अच्छा हो गया, छोटी जर्नी थी, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा मैं ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाती. Yet I was prepared to sit there for almost any length of time, just to listen to her talking. Her voice had a sparkle of a mountain stream. तो लड़का कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पे किसी भी लेंथ ऑफ टाइम तक बैठने के लिए तैयार हूँ. जो उस लड़की की वॉइस है वो माउंटेन से, जो ऐसे बोलते हैं नदियाँ बहती है ना छोटी छोटी, उनके जैसी उसकी वॉइस में एक शाइन है. As soon as she will leave the train, she will forget our brief encounter, but it will stay with me for the rest of the journey and for some time after. तो वो कहता है, लड़का कहता है कि जैसे वो ट्रेन से उतर जाएगी वो ये सब भूल जाएगी, हमारे बीच में हुई बातचीत वगैरह सब भूल जाएगी, लेकिन ये मेरे साथ, ये जो मोमेंट था वो मेरे साथ पूरी जर्नी में रहेगा और शायद जर्नी के कुछ टाइम बाद तक भी रहेगा. लेटर द विंडो विसल श्रीक्ड मतलब टू मेक अ शॉर्ट लाउड नॉइज. तो जो इंजन की घंटी है वो जोर से बजती है. एंड द ट्रेन स्टॉप. Later the girl
got up and she started to collect her things. Now the boy is wondering, is she having short hair or long hair? Is she making a bun of it or it was plaited? Plaited माने हम जो मम्मी चोटियाँ बनाती है ना हमारी स्कूल जाते टाइम, या फिर चोटियाँ बनाई हैं या तो बन बना रखा है, या फिर शायद it was hanging loose over her shoulder or was it cut very short? अब वो उसके बालों के बारे में सोच रहा है, या फिर एक बन बनाया है या फिर चोटी बनाई है, या अपने बालों को खुला छोड़ रखा है शोल्डर तक, या फिर बाल बहुत छोटे कटे हुए हैं, शॉर्ट कटेड। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पे पहुंच गई। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर एंड वेंडर। पोर्टर मीन्स कुल्ली लोग, कुली होते हैं ना जो आप लोग का सामान लेने के लिए स्टेशन पे होते हैं, या पोर्टर्स माने वो। And later he heard a high-pitched female sound near the carriage door. So he is thinking the sound must belong to the girl's aunt. The girl said goodbye to the boy. Now the boy is thinking to himself that the girl was standing very close to him, so close that he was able to smell the perfume from her hair, which was tantalizing. Tantalizing means making you want something that you cannot have or do. He wanted to raise his hand and touch her hair, but she moved away. अब वो जो लड़की थी उस लड़के के बहुत थोड़ा पास खड़ी थी, तो उसे उसके परफ्यूम, जो हेयर का परफ्यूम था उसकी स्मेल आ रही थी, जो इतना अच्छा था उसे लग रहा था कि वो खड़े हो जाए उसके बालों को टच करे, लेकिन वो लड़की चली गई और सिर्फ एक चीज बची, उस परफ्यूम का सेंट। लिंगर मीन्स टू स्टे एट अ प्लेस फॉर सम टाइम और लॉन्गर देन यूजुअल, सो द सेंट ऑफ द परफ्यूम वाज लिंगरिंग at the place where she stood. There was some confusion in the doorway, and later a man get into the compartment. यानी डोरवे में कुछ शायद गड़बड़ हो गई, तो एक आदमी की उसे आवाज आती है जो सॉरी सॉरी बोल रहा था, और फिर वो आदमी अंदर आ जाता है उसी कंपार्टमेंट में। Then the door banged and the world was shut out again. फिर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके लिए वापस दुनिया बंद हो जाती है। फिर वो वापस अपनी सीट पे, बर्थ माने ट्रेन की सीट, अपनी सीट पे लौट आता है। Then the guard at the train blew his whistle and the train moves again. Once again I had to play and a new fellow traveler. अब उसे लगता है कि वापस मुझे वही खेल खेलना पड़ेगा। कौन सा खेल? ऐसा प्रिटेंड करने का कि उसे सब दिखाई देता है, वो अंधा नहीं है, लेकिन एक नए साथी के साथ। The train gathered speed, the wheel took up their song, the carriage groaned and shook. अब वो कहता है कि जो ट्रेन है उसने स्पीड पकड़ ली, व्हील्स की जो आवाज़ आ रही थी वो सोचता है कि व्हील्स ने वापस अपना सॉन्ग ले लिया, और जो कैरेज है वो हिलने लगी और एक ग्रॉन यानी एक क्राइड जैसी एक आवाज़ निकालने लगी। So he found the window and sat in front of him, staring the daylight, which was darkness for him. मतलब अब वो विंडो के पास जाके बैठ गया, अब विंडो से लाइट आ रही थी, लाइट की तरफ देखते हुए बैठ गया, लेकिन वो लाइट भी उसके लिए अंधेरा थी क्योंकि उसे दिखता नहीं था। Now he is thinking that so many things were happening outside the window. It will be a fascinating game guessing what went on out there. मतलब बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और उसे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग गेम होगा कि ये गेस करना कि बाहर एक्चुअली में चल क्या रहा है। The man who entered the compartment broke into my reverie. Reverie मतलब लॉस्ट इनटू थॉट्स या फिर डे ड्रीमिंग। जब आप कोई बहुत गहरे विचार में खोते हो, दिन में सोच रहे होते हो और अचानक से आपको मम्मी बुला देती है कि यहाँ पे आके मेरी मदद कर दो, तो वो आपके ख्वाबों में एक से आपको निकाल लेती है, ख्वाबों से आपको निकाल लेती है, बीच में ही आपको टोक देती है। तो उसी तरीके से
जो मैन अभी एंटर्ड हुआ था कंपार्टमेंट में, वो उस लड़की के रेवरी में घुस जाता है, यानी ख्वाबों में घुस जाता है. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड. आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव और ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट. अब वो आदमी कहता है कि आपको बुरा लग रहा होगा, मैं उतना अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग कंपेनियन नहीं हूँ जितना वो लड़की थी अभी जो थी. नाउ द बॉय सेड, या शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल. कैन यू टेल मी, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? अब वो बोलते हैं हाँ वो इंटरेस्टिंग लड़की थी, आप मुझे बता सकते हो उसके बाल लंबे थे या छोटे? नाउ द मैन सेज, आई डोंट रिमेंबर. Sounding puzzled. Sounding puzzled means sounding confused. I don't remember. He said it sounding confused. Now he said that the only thing I noticed was her eyes, not her hairs. Her eyes were beautiful, but they were of no use. She was completely blind. Didn't you notice? अब वो आदमी कहता है कि उसकी आंखें मैंने नोटिस की जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका काम ही क्या, वो पूरी तरीके से अंधी थी. तुमने नोटिस नहीं किया? तो यहीं पे हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है. आगे इतना कुछ डिस्क्राइब नहीं किया. सो मे बी आगे वो जो बॉय था वो शॉक हो गया होगा, उसे भी झटका लगा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है. बट यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. Don't forget to like and subscribe. Thank you.